everyone. So today I have someone who has influenced my mind, my life in a very profound manner. He's my mindfulness coach, Shishir. I had randomly met him on the campus of IIM Ahmedabad when I was doing my PGPX in 2014-15. So Shishir is now a full-time mindfulness coach. So his mission of life is to help people live a better, more peaceful life. Welcome, Shishir, to the show. Please tell us quickly about your journey, uh, and then I'll tell you why I know I really like some facets of that journey. Yes. Okay. Thank you so much, Anurag sir. And you calling me a mentor feels a little too much because there are a lot of ways in which, and I don't say this only because of niceness, but दोनों ने एक दूसरे से काफी सीखा है अलग अलग चीजों में. um, तो ये जर्नी शुरू हुई जैसे कि टिपिकल मिडिल क्लास जर्नीज अक्सर होती हैं, where 11th and 12th you aspire for IIT JEE. And then the journey went on to see culmination of some of those things. So there was a good amount of practice and studying, etc., etc. And then I was fortunate in some sense to make it to IIT Roorkee, did mechanical engineering there. Then, like most engineering students, in the first year of engineering, I realized this is not for me, and therefore the only pathway that's left is doing MBA. And so went on to do my MBA at IIM Ahmedabad. And from there, like most IIM students, think that consulting is probably the place where joy and success will all combine together, and then went on to do strategy consulting with Monitor Deloitte. It's a wing of Deloitte, which is specifically into strategy consulting. But despite having taken that journey, which from the outside, if somebody would have told me about it, would have felt like the perfect journey to have, everything was settled except for one thing, which was me. On the inside, I didn't feel settled. It wasn't joyful at the end of it. A lot of stress, happiness seemed theoretical at that point. And post that, I realized that maybe I don't know what the answer to life is. But after having done all of that, I could feel that I now know what the answer to life is not. And that's when I transitioned out of consulting, took a couple of years of sabbatical, ये समझने के लिए कि ये happiness है क्या. मतलब अगर काफी चीजें हैं लेकिन नहीं है तो भैया ये कहाँ मिलेगी खुशी. एक तो हम बाजार में निकले ढूंढने कि भैया ये खुशी कहाँ पे है. स्पिरिचुअल शॉपिंग करी, थोड़ी इधर उधर मेडिटेशन करा, काफी रिसर्च किया, सेल्फ रिफ्लेक्शन किया, और थोड़े बहुत रियलाइजेशंस आने शुरू हुए कि अभी तक जो किया गया था वो was an elaborate path to understand that that path wasn't the answer. And I realized that a lot of people in my friend circles or in my age group are facing similar questions about having achieved a lot, but the inner self feels hollow in a lot of ways. And I just sort of went on that journey a little further, to start to understand, and a lot of it I would say is facilitated by ancient Indian scriptures. So just going deeper into itihas. So if you look at, there was a time when COVID etc. stuck. So look at Mahabharat, Ramayana, जो टीवी पे आती थी, and then you get deeper into reading about spirituality, Buddhism, Hinduism, Jainism, and just going through all of that, it sort of started to feel like the purpose of life is a little different from what the Western education system has made us believe. And that's where I stumbled upon this whole path of mindfulness, which is really a way in which spirituality and science come together to enlighten the meaning and purpose of life. And those practices helped me, and I realized that in the process of helping others, it can actually serve people, but more importantly, जब आप उस चीज को स्प्रेड करते हो, किसी भी चीज को पढ़ाते हो, तो किसी और का फायदा होना हो, एक इंसान का जरूर फायदा होता है, वो उसका जो पढ़ा रहा होता है. So I realized that might as well find people and find supporters like Anurag, who will all not just understand what's being discussed, but through the process become a co-traveler on this journey to peace. And finally, like they say in Kapil Sharma show, today I'm at Anurag Singh's podcast. So now journey feels more complete than it did when I had started off.
Thank you again for having me. तो यही मुझे ना बेस्ट पार्ट लगता है जब मैं किसी को बोलता हूँ ना कि मेरा जो माइंडफुलनेस कोच है वो मैनेजमेंट कंसल्टिंग कर सकता था, यूनिलीवर में जॉब कर सकता था, बहुत कुछ कर सकता था रैट रेस में, और आगे रहता, मतलब रैट रेस में पीछे रहने के पास उसका कुछ था नहीं, बट देन ही चोज टू लेट पीपल से कि अच्छे अपनी सांसों पे ध्यान दीजिए एंड ट्राई टू लिव इन द मोमेंट, एंड ही हैज चैलेंज माय बिलीव्स बहुत बार. एंड so Shishir, uh, pertinent to this discussion, since we are recording it today, last week I think social media was trending with that suicide of an IIT plus IIM plus a McKinsey consultant. You've been through consulting. तो जब हम बात करते हैं कि एज अ सोसाइटी वी हैव एक्चुअली बिकम मोर प्रॉस्परस इन टर्म्स ऑफ मटेरियलिस्टिक वेल्थ, आज सबके पास मोरलेस वो दरिद्र जिंदगी नहीं है. इंडियन मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास इज फेयरली वेल ऑफ, बट हैप्पीनेस हैज गॉन डाउन. उसका क्या रीजन है? आई मीन इन टर्म्स ऑफ कंबाइनिंग योर साइंस, स्पिरिचुअलिटी, योर रिसर्च, व्हाट डज दिस से कि एज अ सोसाइटी व्हाई आर वी कलेक्टिवली लेस हैप्पियर, more ambitious, more anxious? There is a specific scene in the 2013 Mahabharata actually where Krishna is sitting with Vidur, and there he's asked a similar question that where is or how does one achieve happiness? And he says in this dialogue, he says happiness is not something to achieve but something to recognize. Now, I think part of a big way or a big marketing storytelling that has happened over the past several years and decades is this idea that the more you have, the happier you will get. Right? Now, let's say आप एक पिज्जा खाते हो, right? आप पिज्जा खाते हो तो पिज्जा खाते वक्त आपको खुशी मिलती है, और लॉट ऑफ पीपल से मजा आया पिज्जा खा के, वो किसी के लिए पिज्जा होगा, किसी के लिए आइसक्रीम होगा. मगर अगर आप ध्यान से देखो तो पिज्जा खाने के कुछ घंटे बाद जैसा आप पिज्जा खाने से पहले महसूस कर रहे थे वैसा ही पिज्जा खाने के 4 घंटे बाद भी महसूस करते हो, विच मीन्स आर व्यू ऑफ हैप्पीनेस अनफॉर्चुनेटली has become so much about momentary peak that we fail to recognize that 4 घंटे बाद पिज्जा खाया या नहीं खाया बात बराबर थी, मेरे इनर स्टेट ऑफ पीस पे कोई फर्क नहीं पड़ा. इन द सेम वे मोबाइल फोन पे जब आप जाते हो तो मोबाइल फोन पे जाके 2 मिनट की इंस्टाग्राम रील देख के मजा तो आया, आप कह सकते हो मेरी खुशी में उन्नति हुई, राइट? मगर वो इंस्टाग्राम रील देखने के बाद 1 घंटे बाद आपके इनर स्टेट ऑफ बीइंग पे कोई परमानेंट फर्क अपलिफ्टमेंट का पड़ा नहीं. नाउ दिस इज इन पार्ट एंड देयर इज अ लॉट ऑफ साइंस बिहाइंड evolution and why we have evolved to be the way that we are. बट अगर मैं फिर से पिज्जा का एग्जाम्पल लूं तो पिज्जा का स्वाद लोगों को क्यों पसंद है, क्यों फास्ट फूड चेन्स चलती हैं? उसका सिंपल रीजन ये था क्योंकि हम सदियों तक जंगलों में थे और जंगल के अंदर खाने की रहती थी कमती. तो हमारा शरीर और मन इस हिसाब से बना कि जैसे ही खाने की चीज कोई दिखे तो अपने आप बॉडी और माइंड शुड बी मोटिवेटेड टू ग्रैब इट. And in that context, foods which were high on fat and high on sugar were among the best survival foods. Therefore, the body and mind automatically, over millions of years, evolved to really chase after those kinds of items. Right? अब शरीर और मन ने कभी खुशी का मायने से पिज्जा या फैट के पीछे नहीं भागे थे, वो सर्वाइवल के लिए अच्छा था जंगल में. अब क्या हुआ है, अब हम जंगल से तो बाहर निकल गए हैं लेकिन अब पिज्जा बनाना भी सीख गए हैं और जलेबी भी बनाना सीख गए हैं. तो इसीलिए शरीर और मन तो अभी भी करता है कि यार ये चीज अच्छी है, मगर वो बना ही जंगल में इसलिए था कि थोड़ी देर खाओ फिर से आप लग जाओ कि अब जो है अगला खाना कैसे ढूंढोगे, क्योंकि वो सर्वाइवल के लिए. हम जो छोटी पीक्स जो हमें मिलते हैं उनको खुशी के साथ कंफ्यूज करने लगे हैं. और अनफॉर्चुनेटली कहते हैं जितना आप उस कोई भी आदत को जितना बढ़ावा दो वो आदत उतनी इनग्रेन होती चली जाएगी. सो the more you run after smaller peaks, unfortunately, you become more habitual to doing that running. Which is why अगर आप, और आप तो सोशल मीडिया पे काफी पॉपुलर हैं इन अ वे, अगर आप भी अपने सोशल मीडिया में देखेंगे, आप अगर एक बार लिंक्डइन पोस्ट डालते हो 100 लाइक्स आते हैं, मजा आता है, तो उसके बाद भूख नहीं मिटती कि अब मुझे 100 और चाहिए तभी शांति आएगी.
The problem is your shanti is now a consequence of how many likes you get. Your posts are not starting from a point कि मेरे अंदर शांति है, चलो मैं पोस्ट डालता हूँ और जो होगा देखा जाएगा, उसके बाद अगली चीज करूंगा. अब जब तक पोस्ट में लाइक्स ठीक नहीं आएंगे, रात को भी वही घूमेगा दिमाग में. At after one of my conversations with you, I stopped counting those likes. नहीं तो क्या होता था, एक पोस्ट डाला, हर 15 मिनट में माइंड जाता था कितना इम्प्रेशंस हो गया, कितने कमेंट्स आए, पिछले बार कितने आए थे यार, इतने अगली बार आएंगे कि क्या क्या मैं ट्रेंडिंग बन सकता हूँ. बट देन यू चेंज द होल माइंडसेट टू बॉस, आई लाइक राइटिंग, आई हैव पुट इट ऑन सोशल मीडिया. जिसको पसंद है, नहीं पसंद है छोड़ दो, कोई बात नहीं. एंड आई थिंक दैट वाज लाइक अ टेक्टोनिक शिफ्ट, leading to a lot less stress around writing, because fundamentally I used to like writing, but that whole Right. pressure जो create हो जाता था ना, वो बहुत ही problematic हो जाता था. तो शिशिर, बच्चे क्यों स्ट्रेस्ड है, यूथ जो बी स्कूल्स में है, प्रोफेशनल कॉलेजेस में है, सीएज हैं, क्यों स्ट्रेस्ड है? एंड देन इन द थर्ड स्टेप, वर्किंग प्रोफेशनल्स क्यों स्ट्रेस्ड है? सभी तो पहले से तो बहुत आगे बढ़ गए हैं इन टर्म्स ऑफ मटेरियलिस्टिक वेल्थ, in terms of Hmm. our access to resources. So how would you Hmm. split the three categories? And then maybe our parents, I mean, post Right. retirement we all say fire, okay, financially independent, retire early. But I see retired people, they're so frustrated with their lives कि करें क्या हम? So ये Correct. क्या चल रहा है? तो एक स्टडी हुई थी हार्वर्ड की. वैसे तो आई prefer quoting a lot of these studies have actually emanated from Indian wisdom. मगर it actually says something very simply, which says कि आपका मन जितना कम आपके वश में होगा, उतने ज्यादा जीवन में आप दुखी होगे. The correlation has not been drawn with how much money you have. The correlation has not been drawn with how many resources you have, how many followers you have. The simple correlation to well-being has been drawn with मेरा मन कितना मेरे वश में है. अब अगर आप इसको कॉन्टेक्स्ट में डालो, जैसे अभी मैं और आप बात कर रहे हैं, तो अक्सर क्या होगा, मन भले ही आप लगाना चाहो बातों में, मगर बात में घूम के कहीं और जाएगा. अब एक चीज विच हैज बिकम अनफॉर्चुनेटली अक्रॉस ऑल द लेवल्स अ प्रॉब्लमैटिक थिंग इज द मोबाइल फोन, फॉर इंस्टेंस. नाउ मोबाइल फोन क्या करता है? मोबाइल फोन आपको आकर्षित करता है, और जब वो आकर्षित करता है तो आप खींचे चले जाते हो. और जितनी बार आप खींचे चले जाने की प्रैक्टिस करोगे, उतने ज्यादा आप कमजोर हो जाओगे मन को अपने वश में रखने के. और प्रॉब्लम क्या है? मोबाइल फोन है, देखने की रिएक्टिविटी उसकी वजह से बढ़ी, तो मन जो है वश में कमजोर होता चला गया. और ये चीज अक्रॉस लेवल्स प्रैक्टिस की जाती है. आजकल कर अब देखोगे छोटे बच्चों को, पेरेंट्स का सबसे आसान तरीका होता है, जब गैदरिंग में छोटा बच्चा होता है और परेशान कर रहा होता है ना, कि उसको मोबाइल दे दो, अब शांत हो गया. आपने मोबाइल देके बच्चे को शांत तो कर दिया, मगर इट हैज एक्चुअली बिन टू द डेट्रीमेंट ऑफ द मेंटल हेल्थ ऑफ द चाइल्ड, because now you have made him or her or them addicted or in a way dependent on that entity, कि तुम्हारे मन को अब इसने वश में कर लिया है, तो तुम अब वहीं पे रहो. अब वही बच्चा जब बड़ा होता है, तो उसको हर पॉइंट पे कोई ना कोई, किसी ना किसी आकर्षण के पीछे मन अपने आप भागने का अभ्यासी हो चुका है. तो मन अगर वो रखना भी चाहे, आज छोटे बच्चे या प्रोफेशनल से बोलो 5 मिनट शांति से बस यहीं पे बैठो और कुछ मत करो. आपसे मैं अगर बोलूं 10 मिनट फोन पे ध्यान मत दो, या 1 घंटा मैं अपने स्टूडेंट से कहता हूँ फोन को दूर रखो, बेचैनी हो जाती है. क्योंकि हम इतने अभ्यासी हो गए हैं मन को अपने पास ना रखने के, कि हमें कोई ना कोई चीज चाहिए, कि अब मुझे इसके ऊपर अपने मन को लगाना है, उस पे मन को लगाना है. मैं अपने कंट्रोल में रख ही नहीं पा रहा. तो जो दादी नानी माँ कहती थी ना, हमेशा खाना खाते वक्त कोई बात नहीं करेगा, वो कहती इसीलिए थी क्योंकि वो कहती थी भैया इस समय जो कर रहे हो उस पे तुम्हारे मन का पूरा ध्यान हो, मन किसी और चीज की तरफ आकर्षित हो तो नहीं, जो चीज है उस पे वापस आते जाओ. वो इस उनको शायद ये आधुनिक टर्म्स नहीं पता होंगे माइंडफुलनेस या मेंटल हेल्थ के, मगर वो कह वही बात रही थी जिसमें खुशी छुपी है. हाउ मच यू आर इन कंट्रोल ऑफ योर माइंड, एंड अनफॉर्चुनेटली अक्रॉस लेवल्स द नंबर ऑफ डिस्ट्रैक्शंस इन आवर सराउंडिंग्स and the amount of practice we've had of being distracted is the core foundation of both unhappiness and stress as well. Yes.
और ये अक्रॉस लेवल्स है, मतलब सब भाग रहे हैं काइंड ऑफ। ये अक्रॉस लेवल से। और इन अ वे आपको मैं एक और बड़ा अच्छा चीज बताता हूँ। तो स्ट्रेस जब मेजर किया जाता है किसी भी एक्सपेरिमेंट में, तो उसके लिए स्केल है। उसका स्केल का नाम है परसीव्ड स्ट्रेस स्केल। द स्केल इज नेवर कॉल्ड स्ट्रेस स्केल, इट इज कॉल्ड एज परसीव्ड स्ट्रेस स्केल। जैसे कि सपोज मुझे किसी ने गाली दी, अब मैं इतना ज्यादा अभ्यासी हो गया हूं कि अगर कोई गाली देता है तो अब मेरा मन उसी के बारे में सोचता रहेगा, भले ही वो मेरे लिए प्रोडक्टिव हो या ना हो। क्यों? क्योंकि मैं इतना अभ्यासी हो गया हूं कि अब किसी ने गाली दी, अब जब तक मैं उसको कुछ बोल ना दूं तब तक मेरे अंदर चैन नहीं आएगा। मेरा मन पे कंट्रोल नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरा नजरिया जो है, इट इज नॉट अबाउट द अब्यूज, इट इज अबाउट द वे आई एम कंपल्सिवली परसीविंग द अब्यूज, दैट अनलेस नाउ आई डू समथिंग आई कांट स्टॉप थिंकिंग। आइडियली क्या बात होनी चाहिए कि सपोज आपने मुझसे कुछ बोला, मेरे पास इतनी क्षमता होनी चाहिए कि अगर ये मेरे काम की चीज है तो मैं इस पर रिस्पॉन्ड करूं, और काम की चीज ना हो तो मेरे मन का 1% टाइम भी इस चीज पर ध्यान देने के लिए ना रहे। मगर प्रॉब्लम क्या है, हमने मन को कंट्रोल करने की कभी प्रैक्टिस ही नहीं करी। तो मन तो हमेशा भटक के जो चीजें जाएगी। और आप सोचना कभी, अम, आपको कोई गाली देता है या आपकी कोई तारीफ करता है, तो आप सोचो उसमें से किस चीज के बारे में आदमी ज्यादा देर तक सोचता है, गाली के बारे में या तारीफ के बारे में? तारीफ के बारे में भी सोचता है कि सच था, कि क्या मोटिवेशन से हाँ, किया, लेकिन सपोज मैंने अभी क्या। अभी आपसे कहा अनुराग जी क्या बढ़िया पॉडकास्ट किया, या मैंने पॉडकास्ट के बाद में कहा अनुराग जी क्या बेकार पॉडकास्ट करते हो आप, कौन सी चीज मन में ज्यादा देर तक घूमेगी? तारीफ ज्यादा घूमेगी या गाली? गाली ज्यादा घूमेगी वैसे तो। गाली। और ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। मन हमेशा जाता है प्रॉब्लम्स और कॉम्प्लिकेशंस की तरफ, और मन कंट्रोल करने की प्रैक्टिस हमने करी नहीं है। दोनों का कॉम्बिनेशन इज लीथल। आप देखना, मन हमेशा रात को, आई हैड कॉर्पोरेट्स हु टोल्ड मी दैट आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट माय बॉस ऑल नाइट। भले ही कोई डेडलाइन नहीं है, कुछ नहीं है, बट मैं सोचना बंद ही नहीं कर पा रहा कि कल वो मुझे क्या बोल दे। मेरा मेरे मन पे इतना, गति पे इतना कंट्रोल है ही नहीं कि अगर ये मेरे लिए प्रोडक्टिव नहीं है तो मैं ना सोचूं। नहीं, मेरा मन अपने आप ही, यार उसने ये कह दिया तो, उसने ये कर दिया तो, मेरा अप्रेजल ऐसा हो गया तो, मुझे ये बोल दिया तो। जो हो या ना हो वो बात की बात है। मगर आदमी का अपने मन पे तो एक संयम हो कि हाँ इस समय ये चीज है तो इस पे ध्यान दूं, वो चीज है तो वो ध्यान दूं, और ये मेरे हाथ में होना चाहिए। व्हाट डज वन डू टू क्रिएट दैट हायर सेंस ऑफ लिविंग, कि मन वश में? फॉर एग्जाम्पल, आई राइट व्हाट्सएप मैसेजेस टू यू, तुम 4-5 दिन बाद में रिस्पॉन्ड करते हो। आई, ऑन सीइंग अ व्हाट्सएप, वुड रिएक्ट इन द नेक्स्ट 20 सेकेंड। मेरे को लगता है वो एक रेस है कि किसी ने हाँ, व्हाट्सएप भेजा है तो मैं कितना क्विकली उसको रिस्पॉन्ड कर दूं। बट देन 4-5 दिन, मतलब यू कैन टेक टू रिस्पॉन्ड, एंड देन अदर पीपल अप्रिशिएट कि हाँ उसका प्रायोरिटीज होगा, वो कुछ चीज में बिजी होगा। द होल परसेप्शन चेंजेस अबाउट द इंडिविजुअल। अब ऐसा नहीं है कि संसार एंग्री नेसेसरी हो जाता है। हाउ डू यू क्रिएट राइट, दैट सेंस ऑफ सेल्फ कंट्रोल, जो यू ऑल्सो टॉक अबाउट सम हेडोनिस्टिक ट्रेडमिल इन आवर सेशंस, सो वो करेक्ट। क्या होता है? तो अम, देखो अनुराग जी, एट द कोर प्रिंसिपल बहुत ही सिंपल है। सपोज आपको अपनी बाइसेप बनानी है, बाइसेप या कोई भी मसल बनानी है, तो उसको बनाने का एक ही तरीका होता है, उसी मसल को बार बार वजन उठाने की प्रैक्टिस करनी है। इन द सेम वे, इफ वन wants to enhance self control, then the self control can be enhanced by practicing self control more and more. Now how do we do it? In mindfulness or in this realm, mindfulness का मतलब है मन मेरे पास में हो। उसका एक बड़ा आसान तरीका होता है, मन जो है भटक के हमेशा जाता है या तो फिर पास्ट की चीजें सोचने में या फ्यूचर की चीजें सोचने में। अभी आप मेरे से बात करते हुए सोच रहे होगे कि अगला सवाल मुझे पूछना है, इसको कैसे घुमा के पूछूं। या सोच रहे होगे यार वो जवाब अच्छा था, अच्छा उतना नहीं था, मजा नहीं आया, आगे कैसे मजा क्रिएट करूं। मन जा तो फिर वहां जाता है या वहां जाता है, इस पल में रहने की उसकी अभ्यास बहुत कम है। और सेल्फ कंट्रोल का मतलब ही यह है कि आप अपने मन को अभ्यासी बनाओ वहां लगाने के जहां उसका अभ्यास उतना नहीं है। तो इसलिए एक बड़ी सिंपल सी हम प्रैक्टिस करते हैं, कहते हैं रोज 10 मिनट आप अगर एक गहरी सांस लो, आपको सांस महसूस होगी नाक के पास में, नासिका के द्वारों पर। सिंपल प्रैक्टिस कहते हैं 10 मिनट तक आंख बंद करके पूरा ध्यान बस इस एरिया में लगा के सांस को महसूस करते रहो।
और मन अगर भटक के पास्ट या फ्यूचर के बारे में सोचे, उसको कहो नहीं नहीं, इस समय ये नहीं करना है, हमें वापस आना है। 10 मिनट अगर आदमी ये करे, सुबह के 10 मिनट, शाम के 10 मिनट, कभी भी 10 मिनट करे, उसने अपनी अटेंशन की मसल, सेल्फ कंट्रोल की मसल को बिल्ड करना शुरू कर दिया। There are established programs that say if you practice things for 8 weeks, there are visible changes in the way you respond to everyday life, visible changes in how much in control your mind is. So that is one thing that can be helpful, which is recognizing the power of practice. मन अभ्यास पे चलता है, और जिसका अभ्यास कर लोगे वो हो जाएगा। अगर आप मोबाइल पे बार बार रिएक्ट करने का अभ्यास करते रहोगे तो मन की रिएक्टिविटी की टेंडेंसी बढ़ती चली जाएगी। और इसीलिए दूसरा रूल जो हेल्प करता है वो है जितना हो सके कुछ रूल्स रखने हैं लाइफ में। रूल्स का मतलब है, मैं सपोज मैसेजेस चेक करूंगा या मैं ईमेल्स को रिप्लाई करूंगा तो रोज केवल 6 से 7 के बीच में। तो क्या होगा, 12 बजे सपोज अनुराग जो है वो लैपटॉप पे बैठे हुए हैं और मेल आया कहीं, राइट? आप अपने मन को कहोगे नहीं, इस समय मेरे को ध्यान मेल पे नहीं देना है, जो काम कर रहा हूं उस पे देना है। तो आपने मन को अपने वश में करने की एक और प्रैक्टिस शुरू कर दी, और सिर्फ 6 से 7 के बीच में मैं जाऊंगा मेल्स का रिस्पॉन्ड करने। तो both practice and setting some rules will be helpful in order for you to do the exact same foundational thing कि मन को मुझे अपने वश में रखना है। हर पल मन वहां हो जहां मैं उसे होने की इजाजत दूं, बस। अगर हम ये कर पाए तो आप सोचो, हर पल कितनी भी विपदा आ रही हो, कितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही हो, अगर मेरा मन मेरे कंट्रोल में है, और दिस इज वेयर एम एस धोनी इज एन एग्जाम्पल इज गिवन इन क्रिकेट। वो कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस समय हम जीतेंगे हारेंगे। आप कभी एम एस धोनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनो, अगर वो खुद से ना कह दें कि मैं हारा हूं या जीता हूं, आप बता ही नहीं पाओगे वो जीते हैं हारे हैं। क्यों? उस समय उनका ध्यान पूरा, ना ही वो उस चीज के बारे में दुखी हो रहे हैं, ना ही उस चीज के बारे में सोच के खुश हो रहे हैं। इस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरा ध्यान देना है, मैं वो दे रहा हूँ। फील्ड पे उनका एकलौता एम है ये नेक्स्ट डिलीवरी को कैसे ऑप्टिमाइज किया जाए, उसके बाद अगली डिलीवरी, उसके बाद अगली डिलीवरी। Now that is where, and he also talks about this idea of being in the present or keeping my mind in my control. Everybody you will notice who is sane and happy, and in fact, why to take MS Dhoni, take our Prime Minister, for example, Mr. Modi. Right? Now, politically, people may have different positions, but you will notice if you ever see a video of him speaking to somebody in the crowd, right, you will notice he is completely involved. मतलब वो प्रधानमंत्री है, उनके पास 10 लाख काम होंगे करने को, मगर उन्होंने कहा इस पल मेरा पर्पस है, मुझे इससे बात में ध्यान लगाना है, तो अब मैं उस मीटिंग के बारे में और इस मीटिंग के बारे में नहीं सोचूंगा, इस समय पूरा ध्यान इसी इंसान पर होगा। अगर आप ये दिन भर में कर पाओ तो सोचो, आप काम करने बैठे 2 घंटे तक काम कर रहे हो, सिर्फ काम पे ध्यान है, और 2 घंटे किसी से बात कर रहे हो, केवल बात पे ध्यान है। और कंप्लीट एंगेजमेंट इज द फाउंडेशन ऑफ हैप्पीनेस। अभी प्रॉब्लम क्या है, मुझसे बात करते करते आप कुछ और सोचोगे, कुछ और करते वक्त कुछ और सोचोगे, आप कभी उस पल में हो ही नहीं, तो हमेशा पास्ट या फ्यूचर में लगा हुआ है दिमाग। Okay. Okay, Shishir. So my next question is, you've seen IITians, you've seen IIM folks. These people also have their own insecurities, weaknesses, tribulations and FOMO. तो कैसे होता है? मतलब संसार को तो लगता है यार कि भाई एक आईआईटीएन है, आईआईएम का बंदा है, इस सर्कल में भी कैसे एंजाइटी एंड ऑल हो सकता है? तो जिस इंसान के पास 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं, उसको क्या चाहिए? 2 मिलियन? जिस इंसान के पास 2 मिलियन है, उसको क्या चाहिए? क्या? ये कब खत्म होगा? एक बड़ा इसको अक्सर कहा गया है, इसको हिंदी में मृग तृष्णा का नाम दिया गया है। 8 मिलियन, 10 मिलियन, हाउ मच मनी इज इनफ? See, one of the things and one of the fallacies that exist is you will often hear people saying जब मेरे पास इतना पैसा हो जाएगा तब मैं अपनी जॉब वॉब छोड़ के फिर मैं आराम करूं। Now, a problem is that if Anurag at the age of 40 is saying that
thinking that Anurag at the age of 45 will feel happy. The problem is Anurag at 40 can't anticipate कि Anurag at 45 will change as a person. तो आप किसी भी लेवल पे हो, और आपने बड़ा वैलिड क्वेश्चन पूछा. आई वाज राइट नाउ जस्ट अ फ्यू वीक्स बैक वॉकिंग डाउन द कॉरिडोर्स ऑफ वन ऑफ द टॉप आईआईएम्स, जहाँ पे न्यू ईयर रेजोल्यूशन का एक बोर्ड था. उस न्यू ईयर रेजोल्यूशन का अगर आप बोर्ड देखोगे तो आप चौंक जाओगे. उसमें कुछ लोगों के रेजोल्यूशंस हैं. आई रिजॉल्व टू बिकम बेटर एट एक्सेप्टिंग माई सेल्फ. Some of us are unhappy and feel miserable about life. I resolve to make that something that more people can understand and to work towards it. These are the students of top IIMs. Why? Because everybody, and you will notice this across different platforms, it's not just on the side of unhappiness. हम सबके घरों के आसपास कोई ना कोई सिक्योरिटी गार्ड या प्रेस वाला या कोई डेली नीड्स वाला ऐसा इंसान जरूर होता है जिसके मीन्स हमसे कम होंगे, मगर वो हमसे ज्यादा मुस्कुराते हैं या हमसे ज्यादा खुश रहते हैं. मतलब मैं तो ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैंने एक आध ऐसे आसपास में देखे तो मैं पहले सोचता था कि यार कितना नाटक चलता होगा ये, कितना ये लोग वो. बट मैंने ओवर पीरियड ऑफ टाइम नोटिस किया दैट ये स्वभाव है. it is not, it is irrespective of how much progress people have made. Some people feel happy in what they've been given. Why? Because they're just grateful for what they have. One of the most prominent happiness practices actually is, अगर मैं क्लास में कई बार पूछता हूँ कि तुम्हारी जीवन में क्या चीज अच्छी नहीं जा रही, और पूछता हूँ तुम्हारे जीवन में क्या क्या अच्छा है, आपको क्या लगता है किस चीज का नोट डाउन करने में लोगों को कम टाइम लगता है? जो जीवन में अच्छा नहीं है, और जो जीवन में अच्छा है? आपका आवाज अनुराग जी नहीं आ रहा है. हाँ, नहीं अच्छा है. नहीं अच्छा है 2 मिनट में आता है मेरे जीवन में, ये ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, क्या ठीक है? हाँ ये ठीक है. हाँ वो क्यों? क्योंकि इंसान का माइंडसेट ही वैसा बना हुआ है. अब आप सोचो, अगर इंसान का नेचुरल माइंडसेट इज, इवन इफ इट्स इवनली बैलेंस्ड, या आदमी सोचे हाँ यार भगवान ने ये दिया अच्छा है, तो फिर आप जो है उसमें भी खुश रहोगे और आगे बढ़ते चले जाओगे, लेकिन सम्मान का भाव तो रखोगे. इनफैक्ट पतंजलि योग सूत्र में आप अगर देखो तो एक नियम जो है संतोष का है कि आदमी में एक सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड, यू आर फीलिंग एट ईज विद व्हाट यू हैव भी होना चाहिए. तो यही नहीं आजकल. And this I am seeing across stages. So it is first and foremost important to dissociate power, fame, and money from well-being. It is really important, and unfortunately our society only makes people feel more and more about कि पैसा होगा, पावर होगा और फेम होगा तब जाके मैं पहुंचूंगा. और अगर ये सच होता तो आप हाई लेवल्स पे, अब आपने अभी बात की आईआईटी, आईएम, मैकिंजी हो या टॉप बॉलीवुड स्टार्स हो, why are a lot of people generally unhappy or there are cases of suicide? For the same reason ना, कि हमने जो एसोसिएशन ड्रॉ किया है वो एसोसिएशन ठीक नहीं है, और ये एसोसिएशन को चेंज करने की रिक्वायरमेंट है. जिस दिन आदमी ये थोड़ा सा, एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग आई एम ऑल्सो वर्क इन प्रोग्रेस, कभी कभी बात करते हुए या सोचते हुए मैं भी उस जाल में आ जाता है इंसान, मगर एज सुन एज यू स्टार्ट टू रियलाइज कि यार वहां नहीं है सच, सच जो है वो कहीं अलग लेवल पे एग्जिस्ट करता है, तब जर्नी में चेंज आना शुरू होता है. But what do you do with society which calls you a loser? For example, जब तुमने एक श्योर. हाई पेइंग जॉब छोड़ा, श्योर. तुम्हारे भी बहुत सारे नियर एंड डियर वंस बोलते होंगे यार शिशिर एस्केप कर रहे हो क्या, क्या कर रहे हो ये सब. हाँ. एंड मैं भी जब अगर कभी सोशल मीडिया पे कभी बोलता हूँ ना कि रेस में नहीं भागना, बोले सर आपसे हुआ नहीं ना, तो इसीलिए शायद हाँ. आप ये सब बोल रहे हो. तो आप राइट. बन के तो दिखाओ पहले. सो राइट. दोज आर द काइंड ऑफ रिएक्शंस दैट यू विल गेट फ्रॉम सोसाइटी, जो आपको राइट. लूजर बोल देंगे. एंड हेंस एवरीवन वांट्स यू टू बी द पार्ट ऑफ द ट्रेडमिल, कि भागते रहो, चलो हम भी भाग रहे हैं तुम भी भागते रहो. सो हाउ डज वन राइट. ओवरकम दैट? ढीठ बन जाए और थिक स्किन? राइट. तो एक्चुअली द प्रॉब्लम, एंड अगेन आई थिंक दिस इज द अदर पार्ट दैट मुझे लगता है काफी मिसअंडरस्टूड है. भागने का इश्यू नहीं है. एंड आई गेव द एग्जांपल ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर. ही इज वर्किंग 18 आवर्स अ डे.
he is really working towards a vision, right? But the difference there is, सोसाइटी मुझे क्या बोल रही है? अगर मेरे मन में इतनी क्षमता हो कि यार मेरा ये विजन है, मुझे इस पे काम करना है, उसकी बात पे मेरे अटेंशन को जाने की जरूरत है या नहीं है, ये मैं डिसाइड करूंगा। तो आप एक चीज सोचो, आपको अगर कोई इंसान जो कि एक्चुअल में पागल है, क्लिनिकली इंसेन, अगर वो आपको गाली देता है, right? क्या आप उसके बारे में उतनी देर तक सोचते हो, या आपको उस चीज का उतना पर्सनल हिट होता है? नहीं ना। नहीं, क्यों नहीं होता हिट? क्योंकि क्योंकि आपका पागल है। नजरिया, हाँ, क्योंकि आपने वो परसीव कर लिया, राइट? नाउ द पॉइंट इज नॉट टू से दैट सोसाइटी इज पागल, बट द रीजन दैट मैड पर्सन इज सेइंग इट इज बिकॉज दैट इज देयर थॉट प्रोसेस और द लैक देयर ऑफ। In the same way, the way you will have a thought process, you will always try and view the world basis your thought process. It is up to me to identify if that is the thought process that gives me peace or not. Suppose you say I'm a loser, it is not something that actually I should run away from. I should ask myself, is what he's saying, is that right? Like, is there a merit in this? And if not, ठीक है यार, वो कह रहा है, उसका अपना एक्सपीरियंस होगा, मेरे को क्या करना है, मेरा अगला मिनट किस चीज की तरफ डेडिकेटेड हो। And this is where it is important, matlab it is very important to have goals. The problem is never about running. The problem is about running defined by the parameters that somebody else has defined, which you don't identify with. इंटरेस्टिंग पॉइंट दैट यू मेड, प्रॉब्लम इज नॉट विथ रनिंग, मतलब कर्म तो हमें एक भागवत गीता में कहा ही गया है ना, कर्म करना है। कर्म करो फल की, बिल्कुल, कर्म करो फल की इच्छा मत रखो। मतलब वो आपने एक टारगेट, और धोनी भी यही कहता है, कहते हैं मैं मैच में जाने से पहले, ये मैच जीतेंगे हारेंगे वो मेरे हाथ में है ही नहीं, राइट? मेरे हाथ में है, मेरे को, मैंने अब इस प्रोसेस को अपने आप को डेडिकेट किया है, अब इस प्रोसेस को मैं कितना अच्छे से जी सकता हूँ। अगर मैं ये सोचने लग गया कि यार मेरे बाद में लोग जब अगर जीत जाएंगे, प्रधानमंत्री कहेंगे वाह धोनी क्या काम किया है, लोग तालियां बजाएंगे, राइट? उसके सिलसिले में अगर मैं उसी के बारे में सोचता रहूंगा, फिर मेरे को जो करना है उससे ध्यान हट जाएगा। सो माई पार्ट ऑफ द थिंग इज, एंड दिस इज वेयर अगेन आई रियली कमेंड एंशियंट इंडियन विजडम, विच आइडेंटिफाइड कि तुम्हारे क्या धर्म है जीवन में, तुम वो आइडेंटिफाई कर लो, राइट? दीज आर द फोर ड्यूटीज दैट यू हैव, और द फोर थिंग्स दैट यू विल वर्क फॉर, एंड देन दैट इज नाउ योर मेडिटेशन। ये इस पे आपका ध्यान हो, कोई कुछ भी बोले। और विवेकानंद जी भी यही कहते हैं, इफ यू मे हैव हर्ड ऑफ मुकेश अंबानी कोटिंग विवेकानंद sometime recently, decide your one purpose and then dedicate all your energies to it. अब कोई कुछ बोले, वो उसका पर्पस होगा, उसका सोचने का तरीका होगा, doesn't have to be what I identify. Okay. Absolutely makes sense. So have your batchmates ever come to you and said, Shishir, we need some sort of mental peace, high achievers? Have you dealt with them? So you've dealt with students. I think you've gone to a lot of IIMs and taught students. You've taught working professionals like us. What has been your journey so far? I mean, once you quit that glamorous job, क्या क्या Sure. किया? You worked with teachers, I suppose. किस किस को काउंसलिंग करते हो? किस प्रकार का So इंटरवेंशन? ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्विट करने के बाद काफी चीजें ट्राई करी थी, लॉट ऑफ थिंग्स आई ट्राइड स्टैंड अप कॉमेडी, बिकॉज मुझे लगा था यार उसमें मजा आएगा करके, बट एक दो बार ट्राई किया, लगा नहीं यार ये वो नहीं है जो मैं करना चाह रहा हूँ। वर्कशॉप्स लिए, और वर्कशॉप्स में टिपिकली आपने और आपके व्यूअर्स ने भी वर्कशॉप कभी ना कभी ली होंगी, तो 2 घंटे की वर्कशॉप होती है, अच्छी गई तो ताली बजती है, नहीं गई तो यार टाइम वेस्ट हो गया, समोसा खा के चलते हैं, right? मगर वर्कशॉप से कभी भी कोई चेंज नहीं आता है। तो देन द एम वाज, हाउ डू यू क्रिएट चेंज? इट कैन ओनली हैपन जब आप लंबे ड्यूरेशन के लिए लोगों को अपने साथ में रखो। तो academic courses is one way in which you can have long duration, at least 2 महीने के intervention, or programs which span from 6 to 8 weeks. Now, one thing that's been very typical on the journey is, and this is again why this conversation is very relevant to your viewers, who I'm assuming are a lot of people are in the younger age group or age bracket. I have done workshops and programs now from 18-year-olds to civil servants across, right? Corporate professionals, working professionals. And I have come to one conclusion, that the amount of change that can happen when you are young is way more than the amount of change that can happen as you grow. If you try and tell a 50-year-old a new way of living life, their mindsets are so ingrained,
कि अब पेनिट्रेट करना ही बहुत मुश्किल है। तो जो अपनी नानी को अगर आप बोलोगी तो उनको मीठा खाने का होड़ लगी रहती है और आपको मीठा मत खाओ, वो कहेंगी अब मैं 75 की होगी, तू अब बताएगा मुझे। मतलब उनका माइंडसेट इतना का लड़का ज्यादा है। आप उस चीज, हाँ एग्जैक्टली राइट। तू तो लड़का है, तू क्या बताएगा मुझे, है ना। 18 से 28, और इनफैक्ट इवन इट इज साइंटिफिकली प्रूवन दैट योर ब्रेन्स कैपेसिटी टू चेंज डिक्लाइंस विद एज। सो इट इज बेस्ट। एंड अगर आप पहले ही देखो तो गुरुकुल सिस्टम जो थे, जो रामकृष्ण थे, वो गुरुकुल में गए थे ये 12, 14, 15 की उम्र में। वो रीजन ही ये था कि वो एज इज वेरी ट्यून्ड कि आप लोगों को चेंज या उनके माइंडसेट्स को चेंज कर सको और वो जल्दी चेंज हो जाए उनके सोचने के तरीके। आप किसी बच्चे को कोई चीज सिखाओगे वो बहुत जल्दी पकड़ेगा, सेम चीज किसी 40 साल को दिखाओगे उसको समय लगेगा वो चीज अडेप्ट करने में। एंड सो माई जर्नी हैज taught me one thing, that the earlier people, and this is where the education system I think needs an overall, right? And even if not the education system, as early as people realize, it needs revisiting the way you're living life, because कई लोगों के 60 साल में जाके रियलाइजेशन आते हैं, मगर जब वो रियलाइजेशन आते हैं तब अब मन बन चुका है, चेंज करने में बहुत जोर लगता है। So that's one of the crux of the journey, that whatever change, and your viewers may be thinking, आप आज बैठो डायरी के साथ और बोलो मुझे अपनी चीज लाइफ में ये 3 चीजें चेंज करनी है। अगर आप आज शुरू करोगे तो आपको वो करना आसान होगा, अगर आपने कल शुरू किया तो करने में थोड़ी ज्यादा मुश्किल होगी, क्योंकि आपकी उम्र कम होती जा रही है, और सॉरी उम्र बढ़ती जा रही है, मन के बदलने की क्षमता कम होती जा रही Yes. This you made a very pertinent point. I mean 60 प्लस या 65 प्लस में किसी को आप बोल ही नहीं सकते कि आप जैसा सोच रहे हो गलत है। सो फॉर एग्जाम्पल आई ऑफन बैटल दिस होल कॉन्सेप्ट ऑफ कि ना मैरिज में 70 लाख रुपया लगाया, मैं है। बोलता हूँ फूका, तो दे गेट हम्म। इन्फ्यूरिएटेड, दे वेयर इट लाइक अ बैच ऑफ ऑनर कि भाई हमने शादी में अस्सी राइट। लाख रुपया खर्चा कर दिया, 1 करोड़ रुपया खर्चा कर राइट। दिया, मैं बोलता हूँ फूक दिया। राइट। बट आई थिंक टू टेल समवन इन दैट एज ग्रुप कि भाई सालों से जो आपने सोचा है कि भाई दिस इज अ बैज ऑफ ऑनर दैट हाउ मच यू हैव स्पेंट इन द मैरिज, वो राइट। ही उसका बिलीफ सिस्टम को आप चैलेंज नहीं कर सकते। आई थिंक दैट बहुत मुश्किल है। एंड अनफॉर्चुनेटली द प्रॉब्लम विद द करंट जनरेशनल वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स इज दैट हमारे पेरेंट्स की अगर आप एज ग्रुप में देखो तो एक्चुअली सर्वाइवल और जस्ट डे टू डे लिविंग वाज मच मोर रिक्वायर्ड कि आप पैसा कमाओ और पैसे की वृद्धि हो, ताकि सबकी एजुकेशन कंट्रोल में हो पाए अच्छे से, बच्चों की घर में आमदनियां पहले नहीं होती थी ज्यादा। तो उन्होंने एक तरीके से मनी वॉज इम्पोर्टेंट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम फॉर सर्वाइवल इन सम सेंस। नाउ व्हाट हैज हैपेंड इज इवन इन फैमिलीज वेयर that has now gotten taken care of, the mindset change isn't happening in the way one should approach life as rapidly as it should. एंड वो पहले बैच ऑफ ऑनर ये था क्योंकि तब पहले पेरेंट्स के जब जनरेशन थी उन्होंने यही देखा है आसपास में, आदमी जो है अभ्यासी है अपने वातावरण का, जो देखता है वो बन जाता है, राइट। नाउ उन्होंने वो किया, वो 60 के हो गए, तो अब ठीक है, अब उनकी कोई गलती नहीं है बिकॉज उनको किसी ने बताया नहीं। मगर हमें अगर ये पता है लेकिन हम तब भी करे जा रहे हैं, तो फिर एक इशू है जिसको रिजॉल्व करना है। what is the kind of usual stuff that you do in this world of mindfulness and happiness coach? क्या क्या करते हो? तो like I said, at the core it is all about helping people recognize ये happiness क्या है, नहीं हैप्पीनेस कहाँ है, स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्शन करने की एक कोशिश रहती है। क्योंकि आदमी कहीं भी खोज के चला जाए, अंत में आता अध्यात्म पे ही है, नहीं। सो द एम इज टू ब्रिंग well-being conversations back into the education system or into people's lives, and logically make them understand what they're doing is not right and why it will not help them in what they're trying to achieve. So typically topics range from understanding physical health and what you can do to make sure physical health is taken care of, then understanding how physical health and mental health are correlated, understanding and becoming better at managing emotions, anger, envy, guilt, self criticism, greed,
एंड देन अबाउट करियर में पर्पस और मीनिंग क्या करके मिलेगा, तो क्या करूं मैं जीवन में कि मुझे खुशी मिले, कौन सा करियर चूज करूं, कौन सा प्रोफेशन चूज करूं, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स इंटर रिलेटेड हैं इन अ वे. So you can speak to these topics to anybody in the world and they'll find it relevant. You conduct workshops at IIMs? I conduct workshops at IIMs with corporates. I've also done programs with the Delhi government, civil servants, Bihar government, and I conduct academic courses at IIM Ahmedabad, IIM Bodhgaya, which are Fantastic. long ये सब duration. जगह तो लोगों को बड़ा इन्वेस्टमेंट बैंकर बनाती है, तुम अध्यात्म की तरफ लेके जा रहे हो. एक्चुअली ये एक और मिसकंसेप्शन है अनुराग जी, और ये आप इंडिया में देखेंगे. जब एक योगी सीएम बन सकता है, तो एक आध्यात्मिक इंसान इन्वेस्टमेंट बैंकर क्यों नहीं बन सकता? मतलब वो मनी द का प्रॉब्लम ग्रीड ही इज, खत्म हो गया मे बी, तो फिर वो कैसे भागेगा? गीता में एग्जाम्पल दिया गया एक आइडल का, राजा जनक. आइडल हैज नॉट बीन गिवन एज एनी ऋषि मुनि, राजा जनक. द प्रॉब्लम इज नॉट मनी, द प्रॉब्लम इज नेवर मनी. The problem is how much in control you are of money rather than how much money drives you. तो जैसे एक है कि यार अब पैसे के पीछे, अब पैसे ने मुझे खींच लिया, अब मैं पैसे का गुलाम बन गया हूँ. और दूसरा है कि पैसा मेरा गुलाम है, इन अ वे कि अब मैं ये अर्न कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को ये वाले पैसे को इधर लगाना है, इसका ये यूटिलिटी करनी है. So, and again coming back to the most spiritual, one of the most spiritual people I know, which is in part possibly the Prime Minister of India. 18 hours of work, can do whatever you want, can do whatever you want to do for the nation. You're getting so much investment. In a way, agar aap dekho, Prime Minister's job is kind of like an investment banker in some sense. An investment banker does that facilitation, right? He's an investment banker. Right? But doing that completely at peace. Why? पर्पस डिफाइन है भैया, ये करना है, देश को आगे बढ़ाना है. इसके लिए अब जो जो करेगा, जो जो लगेगा उस पर मैं अपने मन को लगाऊंगा, और उस चीज के प्रति मेरी ट्रेनिंग जो है रोज रहेगी, हर पल रहेगी. क्यों नहीं कर सकता? The problem is that right now, and this is a problem I face in the classroom also sometimes, initial misconception is people say, अगर मैं खुश रहूंगा तो मेरे को ambition छोड़ना पड़ेगा. Right? Ambition and happiness are, and unfortunately that's how the culture has also sort of progressively become, that you put ambition versus happiness. Kyun? MS Dhoni is very ambitious, very happy, very emotionally intelligent. The problem is ambition. The problem isn't that ambition and happiness are against each other. The problem is that we misunderstood happiness and misunderstood the purpose of being ambitious also. So, Fantastic. So, Shishir, as we end towards this, what does one do on a day-to-day basis? Like, for example, before, suppose one chances across formal. So, example, one wanted, like, I always wanted to go to Vipassana, but 10 days मेरे से हो नहीं पा रहा है, just to ये दुनिया के चक्र में फंसा हुआ हूँ. क्या क्या करना चाहिए for the uninitiated, just to get started, to get a taste of happiness, internal happiness? माइंड जो लाइक बॉडी स्कैन व्हिच यू डू या माइंडफुलनेस, क्या क्या कर सकते हैं? दैट वुड बी माय सेकंड लास्ट क्वेश्चन. okay. It's always good when somebody says second last question, क्योंकि एक बचा लेता है इंसान कि आगे अब मैं ये और पूछ सकता. तो दो चीजें कहूंगा मैं, बड़ी बहुत ही सिंपल हैं. एंड एक्चुअली देयर इज अ पोस्टर बिहाइंड मी, आई डोंट नो इफ यू कैन सी. ये बावर्ची मूवी में कहा गया है, रविंद्रनाथ टैगोर का एक सेइंग है, इट इज वेरी सिंपल टू बी हैप्पी बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू बी सिंपल. सो I'll tell you two simple things to do. And I can promise that if you do this consistently, you will notice a perceivable change. And any viewer of yours will notice a perceivable change in their life. Right? First and foremost, फाउंडेशन एक ही है कि हर पल मेरा मन मेरे कंट्रोल में रहे. इसके लिए एक 10 मिनट का आप अभ्यास कर सकते हो रोज सुबह उठ के. कुछ लोग प्राणायाम से शुरुआत करते हैं सुबह की. अगर आपको वो नहीं करना है, उसमें नहीं है उतनी आस्था, सुबह उठें. कुछ लिंक्स भी हैं इसके ऑडियोज के, मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, आप चाहें तो आगे शेयर कर लें.
सुबह उठें, आंख बंद करें, गहरी सांस से लें 10 मिनट तक, गहरी सांस, और ध्यान सांस पर दें बस 10 मिनट तक, गहरी सांस लेते वक्त। आप क्या कर रहे हो, आप रियली अपने मन को, अपने संयम, अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश कर रहे हो। इस पल सांस आ रही है, इस पल सांस जा रही है, बस ध्यान उस पर है। तो शॉर्ट टर्म के लिए ये प्रैक्टिस करना एक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक फॉर्मल तरीका है जिससे आप अपने मन को धीरे धीरे एक अलग प्रोसेस की तरफ इनिशिएट करते चले जाओ। उससे भी ज्यादा सिंपल चीज, अगर आपको ये नहीं करनी, सबसे सिंपल चीज है जो कि कहा गया है, कर्म योगी बनने की प्रैक्टिस करते हैं। कर्म योगी, आपने ये शब्द कई बार सुना होगा। कर्म योगी क्या होता है? जिस भी कर्म में वो लगा हुआ है उसके साथ योग महसूस करता है। योग मतलब यूनियन। व्हाट डज दैट मीन? मेरी आपके व्यूअर्स से और आपसे भी एक सिंपल सजेशन यही है, आप जो भी कर रहे हो इस समय, आप उस समय सिर्फ उसी चीज पर ध्यान दो। जैसे सपोज आपने कहा अगले 15 मिनट तक मेरे को मम्मी से बात करनी है, फिर 15 मिनट तक वो आपका इकलौता ऑब्जेक्टिव है। आपके उस 15 मिनट के बीच में मोबाइल फोन नहीं आना चाहिए, आपके उस 15 मिनट के बीच में कुछ कुछ चुरमुर खाने की नीयत नहीं आनी चाहिए, और अगर आती है तो बार बार वापस मम्मी की बातों पर ध्यान दो। आप देखोगे कि अगर आप हर पल जो आपने फैसला लिया है उसके साथ में अपने मन को लगाने की का अभ्यास करो, धीरे धीरे यू विल एक्सपीरियंस हैप्पीनेस ग्रोइंग इन यू। Because, like I said, one of the surest parameters of happiness is how much in control your mind is. And for that, go back to दादी नानी, जो अक्सर कहती थी एक समय पर एक चीज। खाना खाते समय खाने पर ध्यान, बात करते समय बात पे ध्यान, काम करते समय काम पे ध्यान, टीवी देखते समय टीवी पे ध्यान। दो चीजें नहीं, एक चीज। सबसे सिंपल, सबसे इफेक्टिव तरीका टू गेट टू वेल बीइंग इज। बट प्रॉब्लम क्या होगी, आपके व्यूअर्स सुनेंगे, शायद कहेंगे वाह, हो सकता है अच्छी बात हो, करते करते भी मोबाइल फोन पे कुछ कुछ कर रहे हो। क्योंकि इस समय ये देखना और मोबाइल फोन करना अपने आप नेचुरली आता मुझे भी है। मेरी तुम्हारी यही डांट पड़ी बकवास हुई है। है मल्टीटास्किंग के लिए, तो आई एम ऑल्सो हाँ। वर्किंग ऑन दैट। ऑल टैप पे जीता हूँ मैं, विच आई हाँ, नो इज अच्छा। किलिंग द ब्रेन, बट यस। तो ये बोलते हैं ना, व्हेन ऑन द बीच बी ऑन द बीच, व्हेन ऑन द वर्क बी ऑन द वर्क। तो करेक्ट। ये नहीं हो कि वर्क पे रह के बीच के बारे में सोच रहे हो और बीच पे रह के फिर वर्क के बारे में वर्क के सोच। बारे में सोचो। Final question, Shishir. Any one line of advice that you would give to people at large? And I think very limited number of people would have reached the end of this podcast because हम तो 60 सेकेंड शॉर्ट वाली दुनिया में चलते हैं ना। तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव अगर कोई यहाँ तक पहुंचा है तो उसे क्या वो हाँ, गोल्डन नगेट ऑफ विजडम मिल जाए जो उसकी जिंदगी बदल दे। मुझे इसमें याद आ रही है जो कि which is sometimes attributed to the Buddha. It says that don't have any guru in your life. मतलब I may be paraphrasing him. Be your own guru. Experiment with everything. Like, given that it doesn't harm your health and also don't experiment with everything. But as you live life and you start to figure out कि ये मेरे लिए अच्छा नहीं है, जैसे फॉर एग्जाम्पल फोन। अगर आपको पता लग गया है कि 1 घंटे बिंज वॉच करने के बाद फोन से फायदा नहीं होता है, देन चेंज व्हाट यू आर डूइंग। तो आप एक एक्सपेरिमेंटल लैब बन जाओ। राइट? आपको जो करने का मन है करो, और फिर देखो आपको फायदा हुआ उससे, अच्छा लगा। एक मेरा बहुत अच्छा, एक एक मुझे बड़ा अच्छी चीज किसी ने बोली। एक वन ऑफ द पार्टिसिपेंट्स ऑफ माइंडफुलनेस सेड दैट वन ऑफ हिज फ्रेंड्स हैड अ ब्रेकअप। और वो ब्रेकअप हुआ, तो जब ब्रेकअप हुआ उसके बाद उसने इसको कॉल किया और कहा यार आज तो मैं रात भर बैठ के दारू पीऊंगा। राइट? नाउ दिस पर्सन न्यू कि ये मतलब इफ दिस पर्सन कंज्यूम्स अल्कोहल एंड ऑल कोई फायदा नहीं होने वाला। बट ही सेड अच्छा कर ले, कल सुबह बात करते हैं। द पर्सन डिड कंज्यूम्ड अल्कोहल, नेक्स्ट मॉर्निंग ही कॉल्स हिम अप, ही सेज कर लिया जो करना था, पी ली दारू, कैसा लग रहा है? एंड दिस गाय लाइक यार अब बिल्कुल अच्छा नहीं। देख मैं तुझे कल ये बात बोलता, लेकिन अब तेरे को समझ आ गया है तो अब मत करियो। तो गोल्डन नगेट यही है, एक्सपेरिमेंट, बट व्हेन यू रियलाइज इट्स नॉट वर्किंग फॉर यू, टेक अ वाउ टू नॉट डू इट अगेन।
if you look at all religions across, and I have somebody close to me who's a Jainism person, वो लोग vows ले लेते हैं, आलू नहीं खाएंगे कभी, व्रत रखेंगे आज कुछ भी हो जाए, निर्जला व्रत। जितना ज्यादा आप वाउस पे चलोगे और देखोगे कि उन वाउस का क्या इफेक्ट हो रहा है, लाइफ ट्रैक पे आ जाएगी। बस। Wow, Shishir, I personally really enjoyed listening to you as always. And I think, like, one thing that you told in my last interaction with you is that we are entitled to a sense of peace more than anything else. I mean, the larger purpose of life is to have a peaceful existence. And then बाकी तो 19 21 चलता रहेगा. I mean, Right. अल्टीमेटली तो चेस जब खत्म होगा तो राजा और रंग दोनों उसी डब्बे में खत्म डल जाते हैं ना. सो थैंक यू. Correct. एंड आई होप जो भी ये वीडियो देखा होगा जिसके अंदर भी पेशेंस होगा, it will be a really an enriching experience for them. Thank you, Shishir. Bye bye. Thank you so much.